Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session of engineering statics. Uh, mm, we have been in consultation with CR about the course outline and course dynamics of engineering statics. और हमने ये चीज़ कुछ देख रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएं। इसलिए जो है वो असाइनमेंट जो है आपको फ्लोट की गई है ताकि आप वो करें और देखें और बच्चे unless and until you are not attempting the questions you are losing hope, you are not going with engineering statics. You have to stick to the basics and you have to stick to the effort, and this is the continuous effort again and again. I'm saying again and again, I am forcing you people to do as many questions as you can. Forget about the your uh, capacity of not solving the questions. You have the capacity, you can do and you can get as many questions concept as you can. The main purpose of forcing you or pushing you by giving you assignments is that you people should get enough practice. You people must undergo each and every question, and don't worry about the stuff, that don't worry about the effort that you think is wastage out if the question is not being properly attempted or your answers doesn't match with the questions, with the solutions. So don't worry about that, and don't completely focus on the solutions. They are the shortcuts. They have the shortcuts, and which eventually confuse you by solving with the appropriate methods, with the appropriate concepts. ओके, तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपने अपने जहन में नहीं क्रिएट करनी। हम आहिस्ता आहिस्ता इनको इसको सॉल्व आउट करते जा रहे हैं और आपने बस बेसिक्स पे फोकस करना है। एग्जांपल्स पहले, तो सबसे पहले एग्जांपल्स करें, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट बिल्कुल नहीं है। यू पीपल मस्ट अडॉप्ट द रीडिंग हैबिट। आई एम कॉन्स्टेंटली एडवाइजिंग यू दैट विदाउट रीडिंग हैबिट्स यू विल नॉट अचीव any strong concepts of this subject. Okay, and one last thing, again and again I'm saying, don't lose hope. Stay with the lectures, stay with the original concepts that I'm constantly giving you. Okay, today we will be discussing more concepts about 3D. Previously we have discussed the scalar components of any force, and we have discussed if we have the two different angles. Particularly I have been focusing on this diagram in the last lecture, in which you have a certain force elevated F spreading in the all three dimensions, Fx, Fy and Fz, and it has it's definitely, because it is in the 3D or three-dimensional quadrants. It has a component along X, it has a component along Y, it has a component along Z. And if we go with the with this particular diagram setup, then we have Fxy, which is the obviously the force of force projection Fxy, which is been placed in X and Y planar coordinate system in the 2D, if you are just considering only the base. ओके, तो इसमें ये वाली चीज़ थी। अब हमारे पास जो है एक चीज़ है, इसमें मैं बेसिकली इसका मकसद ये है आपको समझाने का, और आज जो टॉपिक है उस पर जो फर्दर एडवांस करेंगे हम, वो ये है कि इफ़ वी हैव a certain like x, y and z, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ मैं ये z, ये y और ये x, अगर ये मैं चीज़ एक बना रहा हूँ और इस पे अगर हम फोकस कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था जब भी कोई ऐसी फोर्स ओरिजिनेट अगर यहाँ से हो रही हो, जो कि आपके इवेंचुअली इसके
3 डायमेंशन में ऐसे करके लाई कर रही है, तो उससे जो है आपने वो आपने जो है ना आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं, मतलब INJNK करके, जो मैंने प्रीवियसली मेथड बताया था। अब एक चीज होती है इसमें, एक कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, उसमें ये है कि अगर मेरे पास इन X Y and Z के अलावा कोई लाइन है, मतलब फर्ज करें मैं एक और एडिशनल लाइन बना देता हूँ, मैं एक एडिशनल लाइन बना देता हूँ ये। अब मैं आपको कहता हूँ कि मेरे जो ये वाली फोर्स, फर्ज करें ये मेरी फोर्स है F है, ये मेरी फोर्स F थी, ये मेरी फोर्स F थी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे फोर्स से कंपोनेंट्स निकालो, फोर्स से कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस या इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले उसके यूनिट वेक्टर निकालना होता है इस लाइन का। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरी ये ओरिजिन है, ये मेरा एक ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, और ये मेरी लाइन जो है वो OA है। तो OA जो है, OA जो है उसकी डायरेक्शन में आपने फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप OA का यूनिट वेक्टर लेंगे। OA का यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, OA का मैग्नीट्यूड, OA का पोजीशन वेक्टर, OA का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय OA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो है ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए मैं इसको जरा क्लियर कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। वो उसका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैं ऐसे यूनिट वेक्टर का निशान बनाता हूँ। तो आपको OA निकालना पड़ेगा। OA निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ OA को कर देना है, ठीक है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें, ये वो आपकी फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, वो आपका फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ OA, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इस चीज की कंफ्यूजन ना हो। आज का जो टास्क है, टास्क फॉर टुडे, टास्क फॉर टुडे क्या है मेरे पास, टास्क क्या है मेरे पास, टास्क फॉर टुडे, ठीक है। टास्क फॉर टुडे में हमारे पास आज क्या चीज है, उसमें ये देखना है, इफ वी वांट टू फाइंड if we want to find force component, if we want to find force component F component, या फोर्स या वो एक और बात भी कर सकता है, और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कोई भी हो सकता है। जिस तरह इसमें OA है, OA हो सकता है, OB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि उस पॉइंट्स में लाई कर रहा होगा। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, उस लाइन का पहले आपने क्या ले लेना है, OA, यानी कि इसका एक वेक्टर बना लें और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वो आपको यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह करके हम फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ OA या OB कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरे पास है और मैंने यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू f cos थीटा, यानी कि अब ये f है इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो वो क्या है, f cos थीटा x होता है। आपको मैंने ये तो इसमें आपने पहले देखा हुआ है ना, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें इस वाले आज की चीज में और कल की चीज में ये फर्क है कि हम जो एंगल ले रहे थे वो हमारे पास एंगल एक था, एंगल इस प्लेनर fxy के साथ, और एक था इसके साथ। जो इसके साथ वाला है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसके साथ जो था वो हमने fxy लेना था, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे है तो थीटा x है इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, टू द लाइन। इसी तरीके से थीटा y जो है इज द एंगल ऑफ, ये सारे डिफरेंट एंगल्स हैं, थीटा x, थीटा y, थीटा z। तो वो हमने दो एंगल के साथ किया था, ये हमने अब 3 एंगल के साथ कर रहे हैं। अब हर किसी एंगल डिफरेंट ले रहे हैं, तो ये सारे इसलिए कॉज आएंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर, जो कि इस 4 के साथ होगा। और इसके बाद अब जब ऑब्वियसली इसको जब हम वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप IJK फॉर्मेशन में लिख दिया करते हैं। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को हमने क्या किया, इधर बाहर ले लिया। तो I, ये जो चीजें है ना, I cos थीटा x, I cos थीटा y, I k cos थीटा z, इनको हम कहते हैं, दीज आर द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ फोर्सेस,
ठीक है, ये लाइन नीचे लिखी हुई है, these are the directional cosines, यानी कि क्या मतलब है कि अगर थीटे की उसी एक्सिस से लिया जाए, ठीक है, थीटा उसी एक्सिस से लिया जाए, यानी कि थीटा एक्स जो है वो एक्स से है, थीटा वाई जो है वो वाई से है, थीटा जो जी से है, तो इसके साथ अगर इनकी डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट्स को अलाइन करना है तो आपके पास इसको डायरेक्शन कोसाइंस का नाम दिया जाता है। और आप क्या करेंगे, ये जो सारी की सारी चीज़ है, इसको उसने कहा है कि इसको कॉन्स्टेंट, ये आपके अपने डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूरे का पूरा क्या चीज़ है, ये पूरे के पूरे को चीज़ को हम एन एफ लिख सकते हैं बाय द यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, बिकॉज आई जे एन के इसके साथ अटैच हुए हैं ना। ये तो है सिंपल केस। अगर इस तरह का केस हो, जैसे कि मैं आपको ये एक बना के दिखाता हूँ, ये अगर वो कहते हैं कि ये Q है और ये P है, तो वो कहता है कि P का आपने निकालना है इन Q डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, P cos थीटा ऑफ P डायरेक्शन ऑफ Q, मुख्तलिफ वर्ड। अब आपकी इस तरह में जब इस तरह जेनेरिक एक्सप्लेन कर दिया ना कि आपका कहीं भी वो लाइन हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से निकले वो, ये वो इसमें मैं मुख्तलिफ लाइंस बना देता हूँ, वो हो सकता है वो इधर भी 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 हो। अब आपने क्या करना है, ये फोर्स आपने निकाल लेनी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने सिंपली क्या करना है, इस लाइन का आपने क्या ले लेना है, पोजीशन वेक्टर ले लेना है, इस लाइन का आपने पोजीशन वेक्टर ले लेना है, उसके मैग्नीट्यूड से उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करके और सिंपली उस वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो फोर्स का इफेक्ट आ जाएगा, फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, फोर्स की इफेक्ट आ जाएगा उसकी डायरेक्शन में जिस लाइन पे आप ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली इस तरह होता है कि सीएनसी मशीन्स जो होती हैं उसमें आपने वर्क पीसेस मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए होते हैं, बेड पे एक खास जगह पे भी हो सकता है और मुख्तलिफ जगह पे भी हो सकता है, और जब भी एक वर्क पीस किसी रोटेशन में आता है तो वो उसका क्या होता है, वो उस किसी और लाइन पे इसको, अगर आपने एक सिंपल कंपोनेंट्स के ज़माने में तो ये ऑब्लिक एक्सिस भी थे एक ज़माने में, आप इसको एक्सटेंड कर दें तो इसको ऑब्लिक एक्सिस भी नाम दिया जाता है, लेकिन इसको इस वाले केस में इसको लाइन का नाम दिया जाता है। अगर डिफरेंट लाइन के ऊपर आपने उसका इफेक्ट देखना है तो आपने सिंपल उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 2 आउट ऑफ 9 है। इसमें वो कहता है फोर्स F विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस x y and z शोन। ये F है, इसमें वो कहता है x y and z में शोन है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F पासेस थ्रू द पॉइंट, अब ये फोर्स जो है ये O पॉइंट से गुजर रही है थ्रू द पॉइंट A पॉइंट होकर जा रही है, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3, 4 and 5, ठीक है। अब ये देखो, ये x ये y है, ये z है और ये x है, इसके ऊपर है। अब आपने क्या करना है, उसने कहा है कि x, y and z स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ f निकालें, ठीक है। f का उसका निकालें, तो f का आपके पास जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका x, y and z स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी कि x में, y में और z में निकालना है। आप क्या करें, इसका सिंपली क्या करें, इसका तरीका ये है कि आप इसके आई जे के की फॉर्मेशन में लें और उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि F इज इक्वल टू एफ एन ओ ए, ठीक है। यानी कि आपने एन ओ ए, आप एन ओ ए निकालें, सबसे पहले एन ओ ए जब आप निकालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एक्स वाई एंड जी स्केलर कंपोनेंट्स में आ रहा होगा। यानी कि कैसे, अब ये देखें आप एक्स चल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर साइड पे, इधर साइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली हो कैसे रही है। जैसे कि फर्ज करें ये मेरे पास एक्स वाई एंड जी है, ठीक है। अब एक लाइन है वो यहाँ पे है और मैं उसको कहता हूँ दिस इज बेसिकली ओ ए, ठीक है, साफ करके बता देते हैं। अब आपने जो इस तरह ओरिजिनेट हुई भी होगी, आपने कैसे चलना होता है, आप चलें इसी जो बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट है जहां से फोर्स कर रही है वहां से आपने चलना शुरू करना है। आप यहाँ चलें पहले अलोंग एक्स, ठीक है। अब आप चलें ये है ना, आप चलें अलोंग वाई, ठीक है। अब ये है तो आप चलें अलोंग जी। तो ये जो है ना ये हेड टू टेल रूल से कंप्लीट करेगा एक्स वाई एंड जी। कोशिश करें कि आप उसी एक्सिस में ही मूव करते हुए जाएं, जैसे कि अभी जैसे ये है ना, अब आपने ना इस ए पॉइंट तक पहुंचना, ओ स्टार्ट करें, ओ से यहाँ से पहले गए, फिर यहाँ पे कुछ गए और फिर यहाँ पे यूं गए सीधा। तो अभी आप ये चेक करें, आप एक्स पे अलोंग पे मूव किया है
फिर आप ये वाला चेक करें ये किसके पैरेलल और अलोंग है, ये इस y के अलोंग और पैरेलल है, तो आपने इसके अलोंग और y पैरेलल चलना है। फिर आप इसके यूं चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप 2D में मूव किया करते थे, जैसे कि आप 2D में मूव किया करते थे, ये था ना, आपने यहाँ मूव किया और फिर यहाँ मूव किया हेड टू टेल कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन ये है थी 2D की एग्जांपल। जब 3D की एग्जांपल आएगी तो आपने क्या करना है, आप उसके इधर बेस पॉइंट से ही मूव करते थे ना, अब बेस पॉइंट से मूव करें और अलोंग द एक्सिस मूव करते चले जाएं, तो आप उसके एग्जैक्टली पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां तक वो ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझाने के लिए उसने क्या किया है, पहले भी आप यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते थे जब आप उसको वेक्टोरियल फॉर्म में शो करते थे। तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन ही होती है ना, उसकी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये डायरेक्शन ही है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप सिंपली एन ओ ए से मल्टीप्लाई करें उसके यूनिट वेक्टर से और आप जो है वो इस चीज पे पहुंच जाएंगे जो उसकी डायरेक्शन में है। ओके हो गया। इस तरह आप इसका देखें, ये 3 आए, इधर 3 गया, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ x गया तो i 7 आ गया, 4 इन द डायरेक्शन ऑफ j गया तो j 7 आ गया, 5 इन द डायरेक्शन ऑफ z आ गया तो k 7 आ गया, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो 42.4, इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो 3 डायमेंशन में है वो 42.4 आयोटा में है, 56.6 j में है, या ये इसका x स्केलर कंपोनेंट है, ये इसका y स्केलर कंपोनेंट है और ये इसका z स्केलर कंपोनेंट है। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं और ये जो आपको पिछला तरीका कराया था तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में आपके पास एंगल्स होना जरूरी है। जब एंगल्स नहीं होंगे तो आपको यूनिट वेक्टर वाला ही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो 2 डिफरेंट वेज हैं, इसी तरीके से आप अपने चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एफ ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब आपके पास अब ये एफ एक्स वाई निकालना है। अब ये देखें, ये दूसरे वाले कहता है कि निकालना ये चाह रहा है ये वाली चीज, तो अब आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई एक्स और वाई प्लेन में इस तरह बना लें, थीटा एक्स वाई ये आ जाएगा। थीटा एक्स वाई निकालने के लिए आपने क्या किया, ये एफ ऑफ एक्स एक्स वाई है, सही आ रही है, समझ आ रही है ना। तो ये इसको ठहरो मैं ये वाली जो है नीचे वाली, चलो इसको एक मिनट मैं इसको ना दूसरे उसमें खोल लेता हूँ ताकि उस पर मैं ना कुछ फिट राइट कर सकूँ, आपको भी कुछ आसानी हो समझने के लिए। ज़रा वेयर इज इंजीनियरिंग स्टैटिक्स, स्टैटिक्स ये हो गया, इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि इस पर मैं एडिटिंग कर सकूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में। पेज नंबर कौन सा है, 67। ठीक है जी। अब आपने इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रा बनाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इसका ये तो बंद हुआ है, चलें इसका एक्सेस अलाउ नहीं है एडिटिंग करने के लिए। चलें फिर इधर ही एक्सप्लेन करते हैं दोबारा, ये देख लेते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है ये है एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई। जैसे ये मैंने इधर बनाई थी ना, ये जैसे मैंने इधर ये वाली बनाई थी, तो ये एफ एक्स वाई है, ये वो कहता है निकालना है। तो ये थीटा एक्स वाई जो है ना, ये उस एफ ऑफ एक्स वाई लाइन का एफ के साथ होगा। इस जिस तरीके से जब एफ ऑफ एक्स आप देख रहे थे, सिंपल एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसका थीटा जो था वो उस लाइन पे जो फोर्स है उसके साथ और विद द फोर्स था, यानी कि अगर यहाँ इस लाइन से देखूं तो वो मेरा थीटा एक्स बनता है, और इस तरीके से अगर इस लाइन से देखूं वो थीटा वाई बनता है, ठीक है। तो वो बहरहाल उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ वे से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसे थीटा एक्स वाई आप निकालेंगे यहाँ से, उसके मैग्नीट्यूड लेके, तो उसमें सारी लेंथ दी हुई है, लेके तो आपको कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये आ गया थीटा एक्स वाई। अब क्या करना है, सी पार्ट में कहता था प्रोजेक्शन एफ ऑफ बी, एफ ओ बी ऑफ एफ अलोंग द लाइन ऑफ बी। अब उसने कहा है एफ ओ बी, एफ ये एक और लाइन उसने बनाई हुई है, वो कहता अब इसके
एफ ओ बी ऑफ एफ अलोंग द लाइन ओ बी। अब आप ओ बी का पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, ओ बी का पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये आ जाएगा उसी तरीके से चलना है जैसा 6 इधर इतने इतने यहाँ से 6 यहाँ पे x में, 6 y में और 2 z में, ये चलेंगे तो आपका ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप सिंपली f को NOB से कर देंगे तो आपका 84.9 है, 84.4 आ जाएगा। वो क्या होगा, FOB होगा, यानी कि फोर्स, इस फोर्स का इफेक्ट होगा किसके लाइन पे, FOB पे होगा। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है, अब अपने प्रोजेक्शन FOB निकालना है ऑफ F अलोंग द लाइन OB। FOB की प्रोजेक्शन निकालनी है, वो कौन सी होगी, वो जो ये इसकी इस O से इस पॉइंट तक होगा, O पॉइंट से इस डॉट इस वाले एच तक होगा, ठीक है, जैसे कि ये होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, F.NOB और फिर साथ NOB, यानी कि ये एक जो आप पहले निकाल चुके हैं इसके साथ NOB एक दफा फिर मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या आ जाएगा, वो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा एज अ वेक्टर, ठीक है। ये जो आ रहा था FOB, ये था इसका स्केलर पॉइंट, बात आ रही है तुम्हें समझ। अब ये उसने कहा है FOB ऑफ F अलोंग द लाइन OB, प्रोजेक्शन निकालनी है किस में, एज अ वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। तो ये हेल्पफुल हिंट्स भी देख लें आप कि वो इस तरह किस तरह समझा रहा है। डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फाइंड्स द प्रोजेक्शन और स्केलर कंपोनेंट ऑफ F अलोंग द लाइन OB एज शोन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है, डॉट NOB, ठीक है। जिस तरह अगर आप इसको देखें इस चीज को, तो P डॉट Q जो होता है इज इक्वल टू P Q cos थीटा होता है ना। अब आपने क्या किया, P ये जो एक पूरा का पूरा Q cos थीटा है, ये क्या है, क्या चीज है, आप खुद नोट करें ना इसको, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये Q का कंपोनेंट है किसमें, X में। और ये पूरी डेफिनेशन को अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि P का प्रोजेक्शन है बेसिकली, ये Q cos थीटा जो है ये प्रोजेक्शन है P की इन डायरेक्शन ऑफ Q। बात आ रही समझ के नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, वी कैन व्यू दिस प्रोडक्ट एदर एज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन P cos अल्फा ये ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय Q, और एज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ Q cos थीटा ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। देखें जैसे F ये फोर्स था, आपने क्या किया, इस फोर्स का क्या निकाला आपने, ये इसका यूनिट वेक्टर चल रहा था, यहां से इधर था, आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे लेके जाए तो आप देखेंगे तो Fn जो होगा, आप ये इसका यूनिट वेक्टर है, आपने क्या किया, उसको वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप इसको नोट कीजिएगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो Fn है ना, अगर आप सिंपल डॉट n से करेंगे तो ये इसका स्केलर पार्ट आएगा उसकी डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम उसको फिर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो उसको दोबारा उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये इस क्वेश्चन में उसने किया हुआ, ये उसका स्केलर कंपोनेंट तो आ जाएगा, यानी कि इसका स्केलर कंपोनेंट आ गया, लेकिन अब उसको फिर आपने किस में करना है, वेक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन आपने इसमें परेशान नहीं होना, पुराने ही कंसेप्ट है, पुरानी ही चीज है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको चलें, आप अगर कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2D के हवाले से, आपको फिर 3D में ऑटोमेटिकली उस चीज को क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरे पास था ना 2D, ठीक है, आपके पास ये एक फोर्स था, आपका फोर्स कंपोनेंट ये एक आता था cos थीटा, ऐसे ही है ना, cos अल्फा कह लें, चले अगर मैं ये अल्फा ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ये अंडरस्टैंड होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो F ये साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अब ये जो दोनों थे ना, ये थे स्केलर कंपोनेंट इसके, ठीक है। अब जब इसको यूनिट वेक्टर में करते थे तो आप क्या करते थे, साथ आयोटा अनिया आता था और इधर साथ जे आता था, अगर तो ये दोनों किस में है जी, एक्स और वाई में, ऐसे ये कुछ वाई, और अगर ये जो है
ये मेरा ये किस में है, एक्स में, तो ये मेरे पास अगर वो पॉइंट है तो अब आप नोट करें कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, क्या क्या ये डायरेक्शन बताने के लिए नहीं है कि फोर्स का ऐसा कंपोनेंट जो एक्स की डायरेक्शन में है और फोर्स ऐसा कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में है, फोर्स का कंपोनेंट जो आयोटा की डायरेक्शन में है और फोर्स का कंपोनेंट जो कि जे की डायरेक्शन में है, एक्स जो कि वाई की डायरेक्शन में है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है, अब हमने इसी लाइन को कुछ और कह दिया है, जो हमने ओ ए कह दिया है। हमने फोर्स का निकालना है इसकी डायरेक्शन में। अब बेसिकली ये क्या चीज है पूरा का पूरा, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, और ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में। अगर आप ये आयोटा हटा दें तो ये सिंपली ये बच जाएगा cos थीटा। ये आयोटा आ गया तो ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। बात आ रही है समझ के नहीं आप, सही है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन अगर आप ये चेक करें कि अगर इस लाइन के अलावा, ये लाइन यहां पे नहीं है, अब इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा कोई और लाइन इसमें आ जाए, फर्ज करें ये लाइन आ गई, अब आपने फोर्स का इफेक्ट निकालना है इस लाइन पे। तो मैंने आपको तो एक चीज बताई हुई थी कि आप पैरेललोग्राम लॉ अडॉप्ट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ अडॉप्ट करने के बाद आप सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब 3D का इफेक्ट आता है, 3D में ये चीज कैटर करना बड़ा मुश्किल होता है कि पैरेललोग्राम लॉ कैसे बन रहा है। तब आप यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं, आप यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। आप इसमें भी कर सकते थे, आप इसमें भी कर सकते थे, आप इसके भी कंपोनेंट निकाल लेते, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, फिर आप उसने उसको यूज कर लेते और फिर उसकी डायरेक्शन में उसको कर देते। लेकिन क्या है, अब हमने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट लेके आ गए। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको 3 डायमेंशन में लेके आना पड़ता है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि वो चीज एक्चुअली वर्कआउट कैसे कर रही है। तो बेसिकली ये जो चीज थी, ये यही चीज थी, इसका ये इफेक्ट। अब आपने क्या किया है, आपने क्या किया सिंपली, आपने क्या किया है सिंपली, आप ये तो था ना आपके पास एफ डॉट, फर्ज करें ये था, तो एन ओ ए तो था, ये इसका क्या था, एन ओ ए यूनिट वेक्टर था, ठीक है ना, ये कॉज अल्फा वाला ये था। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो इफेक्ट आ रहा था ना वो स्केलर था, ठीक है। देखें ना, आप देखें ये चीज आपको थोड़ा सा जरा समझने की भी जरूरत है, थोड़ा सा जोर लगाएं कि देखें जब ये फोर्स, ठीक है, इसके साथ कर रही है तो ये एक स्केलर कंपोनेंट आ रहा है यहाँ। इसमें करेक्शन की बात ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ ये भी फोर्स वेक्टर है, इसको भी आपको फोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी वेक्टोरियल फॉर्म में, सही है। अगर तो आप इसके स्केलर फॉर्म में करेंगे तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में ही आएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हमें क्योंकि स्केलर प्रोडक्शन ऑफ एफ देखना था और ओ बी, ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, एफ ओ बी निकाला 84.4, ठीक है। आपने एफ ओ बी निकाला, फिर एफ ओ बी को दोबारा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की भी जरूरत है कि ये हमने इसको कैसे लेके चल रहे हैं। स्केलर प्रोडक्शन ऑफ एफ ऑन ओ बी है, ये स्केलर प्रोडक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास स्केलर जो प्रोडक्शन होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, वो आपके पास उन दोनों को फोर्स उन दोनों को वेक्टर बना के तो आपने निकालना पड़ेगा, सही है। तो इस लिहाज से ये वाला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा टफ भी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। एक बार दोबारा सुन लें, फोर्स वो कहता है कि फोर्स है और फोर्स का हमने क्या निकालना है, फोर्स का एक्स वाई स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। वो आपने एक्स वाई स्केलर कंपोनेंट्स निकालेंगे ना, वो तो आपने सिंपली अब एफ को इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये आ चुका है। अब ये फोर्स वेक्टर है, सही है। अब ये फोर्स का वेक्टर आ गया।
आप सिंपल वेक्टर आई जे के मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, आपको इनके यूनिट वेक्टर निकाल के तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, बिकॉज वो 3D में है और अभी एंगल्स भी इसके साथ नहीं पता, या तो एंगल वाला कंसेप्ट लगाएं, एंगल नहीं है तो अभी इस तरह करना पड़ेगा। अब ये फोर्स का वेक्टर आ चुका है, अब एक दफा फोर्स का वेक्टर आ जाएगा फिर पूरे इसमें पूरे क्वाड्रेंट में अभी कोई भी लाइन लगा दें, आपने क्या करना है, इस लाइन का यूनिट वेक्टर लेना है और इस फोर्स का कर देना है, तो वो उसका स्केलर आ जाएगा, स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा, वो स्केलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोजेक्शन कह लो, स्केलर कंपोनेंट कह लो। फिर उसको दोबारा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर उसके स्केलर कंपोनेंट को भी वेक्टर फॉर्म में लेके जाना। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को थॉरोली करें सबसे पहले, अभी आगे क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, यहां तक आपने इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आपने दोबारा समझ समझ के देखना है, और पुराना ये थ्योरी लाजमी पढ़नी है, इसकी जो थ्योरी है 3D की, और रिलेट करें 2D इफेक्ट के साथ, फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअली ये वर्कआउट कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। तो एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज यू मे आस्क। अब बेटा इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आप मेरे से ईमेल्स में या कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। ठीक है, तो और ये अगर आप नहीं पूछेंगे इसमें तो ये चीज़ें तो एडवांस होती जाएंगी ना मजीद मजीद। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने कुछ हद तक कि 3D का सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बार बार इसको ज़रा आपको रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।